Hello students, welcome to my new video. In this video, we will see the third lesson of civics, the state government. So, you should take your SST textbook and open your page number 227 from it and keep it in front of you. Okay, there are some words and their meanings. We have to understand the meanings of these words here. First, accountable means responsible for decisions and actions taken by the persons himself or herself and expected to explain them when they are asked. मीन्स जो भी डिसीजन या एक्शन कोई भी लेता है स्पेशली इन गवर्नमेंट ओके तो वो जो भी उसे आंसर पूछा जाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो पर्सन ओके दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबल स्पेशली अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल. Then allocates, next word is here allocates means to give something officially to somebody for a particular purpose. मीन्स ऑफिशियली किसी भी व्यक्ति को कुछ देना पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसे हम बोलेंगे एलोकेट्स. स्पेशली एलोकेट्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूट. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज बायकैमरल means a representative form of government composed of two legislative chambers. और ये क्या है bicameral, that is a representative form of government. ये representative form of government है और यहाँ पे two legislative chambers रहते हैं. Got it? Then next word is here legislature. Legislature means a group of people who have the power to make and change laws. And this legislature means दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. ये ग्रुप रहता है लोगों का और इन्हें पावर रहते हैं जो भी लॉ फॉर्म होते हैं ये फॉर्म करने के और लॉ चेंज करने के भी पावर रहते हैं लेजिस्लेचर को. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज लोकल बॉडीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल who work or act together for an official purpose in a particular area. And these local bodies is also a group of people. ये भी एक लोगों का ग्रुप रहता है और ये एक साथ वर्क करता है ऑफिशियली ऑफिशियल पर्पस के लिए एंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. ओके, देन प्रिसाइडेड मीन्स टू लीड और बी इन चार्ज ऑफ मीटिंग सेरेमनी एक्सेट्रा. और ये क्या रहते हैं प्रिसाइडेड, ये किसे बोलेंगे हम, अगर कोई मीटिंग है या सेरेमनी है तो वहाँ पे जो भी हेड रहते हैं इंचार्ज उसे हम बोलेंगे प्रिसाइडेड. ओके, अध्यक्षता करना किसी भी मीटिंग की. देन यूनिकैमरल, लास्ट वर्ड इज यार यूनिकैमरल, अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बट हियर सिंगल लेजिस्लेटिव चेंबर. यहाँ पे सिंगल लेजिस्लेटिव चेंबर रहता है. व्हाट इट, दैट इज कॉल्ड द यूनिकैमरल. बायकैमरल में टू लेजिस्लेटिव चेंबर्स रहेंगे एंड यूनिकैमरल में सिंगल लेजिस्लेटिव चेंबर रहेगा. गॉट इट. नाउ कम टू द लेसन. Last year we discussed about 3 levels of government in India, central, state and local, and did a thorough study of how local bodies functions. And students, we have studied in the 6th standards about 3 levels of government. There are 3 levels, okay, central, state and local. And in 6th standard we have studied about the local bodies. ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये कैसे वर्क करता है ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा. गॉट इट. दिस ईयर वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. नाउ इन दिस ईयर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. गॉट इट. ये साल हमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है. और कॉन्स्टिट्यूशन clearly defines the power of the state governments and the extent of its authority. And in our constitution, you know constitution means that is a written documents. There are some rules and regulations for
citizens for government. Okay, that written document is called the constitution. Got it? And our constitution clearly defines the power of the state government. जो भी state governments है इनके पावर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, कौन से पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं. ओके, एंड द एक्सटेंड ऑफ इट्स अथॉरिटी, इनके अथॉरिटी भी यहाँ पे अथॉरिटी मीन्स अधिकार. Laws for governing the state are made by its legislative assembly. The procedure of making and passing laws is called the legislation. And जो भी प्रोसीजर रहती है लॉ फॉर्म करने की और इसे पास करने की, उसे हम बोलेंगे लेजिस्लेशन. ओके, a legislature is a formally chosen body of people empowered with the authority to make rules and regulations. And what is this legislature? That is one body of people जो हमने इलेक्ट करके दी रहती है. ओके, एंड उन्हें पावर रहते हैं जो भी रूल्स है एंड रेगुलेशंस हैं ये फॉर्म करने के. दैट बॉडी इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर. गॉट इट? लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल इज आइदर यूनिकैमरल और बाइकैमरल. ये जो लेजिस्लेचर है दैट इज़ अ बॉडी ऑफ पीपल. ओके, ये लेजिस्लेचर यूनिकैमरल हो सकती है या बाइकैमरल हो सकता है. ओके, एट द स्टेट लेवल, हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉट अ सेंट्रल लेवल. व्हाट इट? विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस while विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस. There are two houses. Which are these? Vidhan Sabha or Legislative Assembly, that is a lower house, and Vidhan Parishad and Legislative Council is a upper house. Got it? Except Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh. All other states have unicameral legislature. Okay. ये जो 7 स्टेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिलेगा. एंड जो बाकी स्टेट्स है यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है. व्हाट इट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर लेजिस्लेटिव काउंसिल. वी हैव टू स्टडी अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट ओनली इन 7 स्टेट्स. अब ये जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये सिर्फ 7 स्टेट्स में है. ओके, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. और ये जो मेंबर्स रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. इसे MLCs कहा जाता है. ओके, द काउंसिल्स कॉम्प्राइजेज 1/3 मेंबर्स इलेक्टेड बाय MLAs. और ये जो भी मेंबर्स रहते हैं 1/3 मेंबर्स, ये MLAs इलेक्ट करते हैं. ओके, 1/3 मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज़. 1/3 मेंबर लोकल बॉडीज से इलेक्ट होके आते हैं. 1/12 बाय ग्रेजुएट्स लिविंग इन द स्टेट. और 1/3 ग्रेजुएट्स रहते हैं. 1/12 by teachers of secondary schools, colleges and universities, and remaining 1/6 nominated by the governor. Okay, since it is a permanent body, only 1/3 members retired every 2 years. and ये permanent body रहती है, and जो 1/3 members हैं ये retired होते हैं हर 2 साल के बाद. Every member हैज़ अ टेन्योर ऑफ 6 years. और हर एक मेंबर्स का 6 years का वर्किंग पीरियड रहता है. टेन्योर मीन्स वर्किंग पीरियड, जो भी वर्क करने का पीरियड रहता है, पोस्टिंग का पीरियड बोलेंगे हम इसे, दैट इज़ कॉल्ड द टेन्योर. व्हाट इट? द मीटिंग्स ऑफ द हाउस आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ चेयरमैन एंड इन हिज एब्सेंस बाय द डिप्टी चेयरमैन. जो भी मीटिंग्स यहाँ पे रहेंगी हाउसेस में, ये यहाँ के हेड कौन रहते हैं? चेयरमैन. ओके,
एंड अगर ये एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन पूरे मीटिंग को हैंडल करेंगे. गॉट इट. नाउ 1 minute. स्टेट legislative assembly, legislative council. Okay, that is the legislative assembly and that is the legislative council. In legislative assembly non permanent house elected for 5 years. और ये legislative assembly क्या रहती है, नॉन परमानेंट हाउस है ये, और ये 5 years के लिए इलेक्ट होके आती है. एंड देन legislative councils, that is the permanent house and 1/3 members retired every 2 years. और ये परमानेंट हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और 1/3 मेंबर्स यहाँ के रिटायर्ड होते हैं हर 2 साल के बाद. ओके. देन इन लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर. ओके, कौन रहेगा यहाँ पे? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर. देन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली and then members of legislative assembly. Then here who is the main here in legislative council? Chairman, deputy chairman. अगर chairman absent है तो deputy chairman, and then members of legislative councils. Okay. Now on next page there are MCQs. We have to solve the MCQs. Most of the state in India have fill in the blanks legislature, unicameral. Okay, B option is answer here. Then the legislative council exists only in fill in the blank states. There are 3 options, 4, 5, 6, but answer is a 7. Okay, the legislative councils exist only in 7 states. Got it? Now legislative assembly. For the sake of elections, states are divided into smaller areas known as constituencies. एंड जो भी इलेक्शन लिया जाता है, इलेक्शन लेने के लिए स्टेट्स डिवाइड किया जाता है अलग अलग एरिया में, स्मॉल एरिया में, एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके, इलेक्शन के लिए जो स्टेट डिवाइड किया जाता है उसे वार्ड भी बोलेंगे हम. दीज स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. Registered voters of the region elect one representative from each constituency to the legislative assembly. and जो भी registered voters है वो एक रिप्रेजेंटेटिव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करके देते हैं. ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली में. दे देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अमॉन्ग द पीपल, और ये मेंबर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का. ओके, these MLAs belong to different political parties and organized a group of people with a common objectives. and ये जो MLAs है ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग रहते हैं. द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट. जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी सीट्स रहेंगी वो सीट्स कितनी होनी चाहिए ये स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड रहेगा. ओके, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट्स ज़्यादा रहेगी, पॉपुलेशन कम है तो सीट्स कम रहेंगी. The Constitution defines that it should not be more than 500 or less than 600. और Constitution ने ये फिक्स किया हुआ है कि ये जो भी सीट्स है ये 500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड 60 के नीचे भी नहीं होनी चाहिए. ओके. In addition, if the Anglo-Indian community is inadequately represented, the governor can nominate a member. और अगर कहीं पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ये अगर कम होते हैं तो गवर्नर जो भी मेंबर है वो नॉमिनेट करता है. The political party that wins more than half the constituencies in the election is said to be in majority. and जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है वहाँ से जो भी मेंबर्स इलेक्शन में इलेक्ट होके आते हैं, आधे से ज़्यादा अगर
मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी कहलाती है। ओके, दिस पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और ये पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और इसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन उत्तर प्रदेश for 403 seats. Since the Samajwadi Party won 224 seats, it emerged as the ruling party in the 2012 assembly election. There is one example जो असेंबली इलेक्शन लिया गया उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे 403 सीट्स थी एंड जो समाजवादी पार्टी थी ये 224 सीट्स यहाँ पे जीत चुकी थी। ओके, एंड ये रूलिंग पार्टी बन चुकी थी 2012 में असेंबली इलेक्शंस की। ओके, एट टाइम्स वन सिंगल पार्टी डज नॉट गेट अ मेजोरिटी, अगर इलेक्शन में सिंगल एक ही पार्टी मेजॉरिटी में इलेक्ट होके नहीं आती है तो इट अलाइज विथ 2 और मोर लाइक माइंडेड पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और अगर एक मेजॉरिटी में नहीं आती है रूलिंग पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होके तो वहाँ पे ये दूसरे पार्टी का सपोर्ट ले सकती है, एक या दो पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोलिजन गवर्नमेंट, इसे कोलिजन गवर्नमेंट बोलेंगे हम। द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड टू द असेंबली आर कॉल्ड अपोजिशन, और बाकी जो भी इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे असेंबली में ये इन्हें अपोजिशन कहा जाएगा। इन दिस केस बहुजन समाज पार्टी वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी एज इट वॉन 80 सीट्स, और ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी थी ये अपोजिशन पार्टी थी। ओके, सॉरी, बहुजन समाज पार्टी ये अपोजिशन पार्टी थी। द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर्मली हैज़ अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका वर्किंग पीरियड 5 ईयर्स का रहता है। हाउएवर अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर। सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थिति, अगर स्पेशल कोई सर्कमस्टेंसेस है तो यहाँ पे ये जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है ये पहले ही डिसॉल्व होगी। ऑल मीटिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर और इन हीज एब्सेंस बाय द डिप्टी स्पीकर, और जो भी मीटिंग्स रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे स्पीकर हेड रहते हैं। ओके, जो भी स्पीकर है ये पूरे मीटिंग को हैंडल करते हैं, और इन हीज एब्सेंस अगर ये एब्सेंस है तो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर हेड रहेंगे। ओके, बिसाइड्स टेकिंग वोट्स ऑन इश्यूज द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, और जो इलेक्शन होता है उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो गवर्नर है ये मेजॉरिटी पार्टी को इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ओके, द MLAs ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट अ लीडर हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, और जो भी MLA है मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आफ्टर द 2012 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन द MLAs ऑफ समाजवादी पार्टी चूज अखिलेश यादव एज द लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे 2012 के इलेक्शन का दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन का, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी थी ये रूलिंग पार्टी थी। ओके, मेजॉरिटी पार्टी थी, और यहाँ के जो लीडर थे अखिलेश यादव ये चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के। ओके, द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट्स हिज मिनिस्टर्स, अब ये जो चीफ मिनिस्टर है ये उनके मिनिस्टर्स सिलेक्ट करते हैं। एलोकेट्स पोर्टफोलियोज एंड द कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, और अलग अलग जो भी ड्यूटीज़ है पोर्टफोलियोज किसे बोलेंगे हम, जो ड्यूटीज़ है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
एंड जो भी फंक्शंस है, वर्क है अलग अलग डिपार्टमेंट का, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. द मिनिस्टर्स हु हेड various departments represent the government in the legislative assembly and are responsible for the execution of the laws. एंड जो भी मिनिस्टर है अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड, ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उन जो भी लॉ वहाँ पे फॉर्म होगा उसके लिए. ओके. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंटली. एंड जो भी चीफ मिनिस्टर है और उनके बाकी जो मिनिस्टर है, ये पूरे रिस्पॉन्सिबल, सभी मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो भी गवर्नमेंट वर्क करता है उसके लिए. ओके. कितना एफिशिएंटली है गवर्नमेंट, कितना वर्क वो अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए ये सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. द गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ अपॉइंटेड फॉर 5 years बाय द प्रेसिडेंट. और जो गवर्नर रहते हैं ये नॉमिनल हेड रहते हैं स्टेट के, और इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 5 years के लिए. ओके. ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओवरसीज द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं. एंड ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट वर्क करते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं. ओके. नाउ फंक्शनरीज ऑफ स्टेट्स. The governor is the nominal head of the state and is appointed by the president for a period of 5 years. और जो भी गवर्नर है ये नॉमिनल हेड है स्टेट के, और इन्हें किसने अपॉइंट किया हुआ है? प्रेसिडेंट ने. और ये जो गवर्नर है ये 5 साल के लिए रहते हैं. ओके. द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड और द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट. और जो गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं प्रेसिडेंट ने, ये प्रेसिडेंट कभी भी गवर्नर को निकाल सकते हैं. ओके. अ गवर्नर इज़ टू द स्टेट एज प्रेसिडेंट इज़ टू द नेशन. जैसे प्रेसिडेंट नेशन के लिए है वैसे गवर्नर स्टेट के लिए है. ओके. ऑल बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू बी अप्रूव्ड एंड साइन बाय द गवर्नर. और जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होते हैं वो अप्रूव्ड होना ज़रूरी है और गवर्नर की वहाँ पे साइन ज़रूरी है. गॉट इट. द चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट. और जो चीफ मिनिस्टर है ये रियल हेड रहते हैं स्टेट के. नॉमिनल हेड गवर्नर रहेंगे, रियल हेड चीफ मिनिस्टर रहेंगे. ओके. She or he advises the governor on the council of minister to be selected and their number. And the chief minister assign portfolios to the ministers and appoints a deputy chief minister is if required. And जो chief minister होते हैं ये जो भी ministers की responsibilities है, duties है, इन्हें हेल्प करते हैं. ओके. उनका जो भी वर्क है, फंक्शंस है वहाँ पे अदर मिनिस्टर्स का. एंड जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है इन्हें अपॉइंट्स करते हैं अगर ज़रूरी है तो. ओके. चीफ मिनिस्टर की अगर ज़रूरत है तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर. ओके. The council of ministers, including the chief minister, cannot be more than 15% of the numbers of members of legislative assembly. और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड है. ओके. ये 15% नंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके 15% मेंबर्स से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए. ओके. गॉट इट. द काउंसिल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. अब ये जो काउंसिल्स है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ओके.
There are three categories of ministers: cabinet ministers, ministers of states, and deputy ministers. A cabinet minister can hold one or more portfolios and is assisted by the ministers or state and और डिप्टी मिनिस्टर. एंड जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं इन्हें एक या एक से ज़्यादा ड्यूटीज़ दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है. ओके और इनकी बाकी जो मिनिस्टर्स रहते हैं स्टेट मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर्स ये हेल्प करते हैं. गॉट इट. Now, next topic is here the MLAs meet in the विधान सभा. एंड ये जो विधानसभा होती है यहाँ पे MLAs मिलते हैं. ओके एंड विच टाइप ऑफ डिस्कशन देयर वी हैव टू सी अबाउट दिस डिस्कशन हियर. ओके क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है विधानसभा में, जो MLAs मिलते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है. Several meetings of the Vidhan Sabha take place over the next 5 years. At every sitting, several matters concerning the state are discussed. और हर एक मीटिंग में जो भी मैटर्स यहाँ पे होंगे, बहुत सारे मैटर्स ऐसे रहते हैं कि उस पर डिस्कस होता है जो स्टेट से रिलेटेड रहते हैं. ओके डिबेटेड एंड डिबेट भी होती है. यू नो डिबेट मीन्स बहस, एक दूसरे के साथ बहस करते हैं. एंड मेनी डिसीजंस आर टेकन विच इंक्लूड एंड बहुत सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं. उसमें कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं ये हमें देखना है. हाउ मच सेल्स टैक्स शुड बी पेड ऑन वेरियस आइटम्स एंड कितना सेल्स टैक्स पेड किया गया जो अलग अलग आइटम्स पे था. वेदर इट शुड बी मोर ऑन मैच बॉक्सेस और ऑन ऑयल. मीन्स जो भी थिंग्स वहाँ पे रहती है उस पे वहाँ पे डिस्कशन होता है. यहाँ पे मैच बॉक्सेस दिए हैं एंड ऑयल. ओके वेदर अ कंसेशन शुड बी गिवन फॉर फर्टिलाइजर्स और नॉट. जो भी फर्टिलाइजर्स है, यू नो फर्टिलाइजर्स मीन्स दिस केमिकल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इन फार्मिंग. ओके दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइजर्स. तो ये जो भी फर्टिलाइजर्स है इस पे कंसेशन दिया है कि नहीं दिया है. ओके इस पे भी यहाँ पे डिस्कशन होता है, बहस होती है. हाउ पंचायत शुड बी फॉर्म्ड एंड अदर सच टॉपिक्स. और पंचायत कैसे फॉर्म करनी चाहिए एंड और भी कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं कि यहाँ पे डिस्कशन होता है विधानसभा में. सभी MLAs मिलके ये डिस्कस करते हैं, डिबेट्स भी होता है. ओके In these meetings, the MLAs often put questions to the government and the concerned minister replies. And ये जो भी मीटिंग्स होती है विधानसभा, ओके तो यहाँ पे जो MLAs है ये क्वेश्चंस करते हैं गवर्नमेंट को. जिनकी गवर्नमेंट रहती है, यू नो गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में इलेक्ट होके आती है. मीन्स जो भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट होके आएंगे वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. और ये गवर्नमेंट को बाकी जो अपोजिशन वाले रहते हैं, मीन्स बाकी जो MLAs रहेंगे, इलेक्ट होके आए हुए मेंबर्स रहेंगे, ये क्वेश्चंस करते हैं. ओके एंड दिस मिनिस्टर रिप्लाइज. और जो भी मिनिस्टर्स को क्वेश्चन किए जाते हैं वो रिप्लाई करते हैं. somebody should ask prices are rising sharply. और कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं. आपने डिबेट्स देखे होंगे, डिस्कशन देखा होगा पार्लियामेंट का. ओके तो वैसे ही यहाँ पे विधानसभा में होता है. व्हाट इट प्राइजेज आर राइजिंग शार्पली. जो भी प्राइजेस है बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है. अभी जो प्रेजेंट डे है हमारे मार्केट में बहुत सारे प्राइजेस बढ़ चुके हैं. ओके वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी प्राइजेस है ये स्पीडली बढ़ रही है. व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दिस. आप क्या कर रहे हैं इसके लिए. अब ये अपोजिशन वाले पूछ रहे गवर्नमेंट को. टू विच द फाइनेंस मिनिस्टर वुड हैव टू गिव रिप्लाई. एंड किसे पूछा ये क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर को.
If it were asked in how many primary schools of the states is there a shortage of teachers, एंड ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एजुकेशन मिनिस्टर को पूछा गया है. ओके, इन हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट इज द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, यानी कितने स्कूलों में प्राइमरी टीचर्स का शॉर्टेज है, एंड व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दिस, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसके बारे में. तो ये एजुकेशन मिनिस्टर को क्वेश्चन किया है, इसलिए यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर्स रिप्लाई देंगे. ओके, सम एमएलएज वुड बी सेटिस्फाइड बाय द आंसर्स वाइल अदर्स मे नॉट बी. कुछ एमएलए सेटिस्फाइड होते हैं आंसर से, यानी जो भी मिनिस्टर को आंसर पूछा जाता है वो आंसर से कुछ एमएलएज होते हैं तो कुछ नहीं होते होंगे. ओके, द स्पीकर कोऑर्डिनेट्स दिस डिस्कशंस, और ये जो भी मीटिंग रहती है यहाँ पे इसके हेड कौन रहते हैं, स्पीकर, और उन्हें मीटिंग कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है. ओके, the speaker's job is to ensure that everybody gets a time to present their opinions, and what is the duty, what is the responsibility of the speakers is here कि हर एक को अपने जो भी ओपिनियंस है ये प्रेजेंट करने के लिए टाइम दे. ओके, एंड द एमएलएज लिसन टू ईच अदर पीसफुली, और ये जो एमएलएज यहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं ये एक दूसरे का पीसफुली सुने. ओके, it is up to the speaker to decide which issues could be discussed and in what order, and ये जो भी यहाँ पे डिस्कशन चलता है ये कौन सा इशू कितने टाइम तक डिस्कस करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये स्पीकर डिसाइड करते हैं. ओके, now MCQs, we have to solve the MCQs here. First, the fill in the blank selects his minister, allocates portfolios and coordinates the functions of various departments for the state. There are three options: A, prime minister, B, chief minister, and C, home minister. What is the answer here? Chief minister. B option is answer here. Okay, चीफ मिनिस्टर कौन सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर, और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. व्हाट इट. देन सेकेंड, द फिल इन द ब्लैंक्स कोऑर्डिनेट्स द डिस्कशंस इन द विधानसभा. जो विधानसभा होती है यहाँ पे जो डिस्कशन होता है ये कौन कोऑर्डिनेट्स करते हैं बोलते हैं. अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऊपर के पैराग्राफ में. देर आर थ्री ऑप्शंस: ए स्पीकर, बी चेयरमैन, एंड सी चीफ मिनिस्टर. ए ऑप्शन इज आंसर हियर, स्पीकर. ओके, द स्पीकर कोऑर्डिनेट्स द डिस्कशंस इन द विधान सभा. गॉट इट. नाउ students, today's topic is completed here. Next topic is here, debate in the legislative assembly. We have to study about these debates in the next video, video number 2. Okay, what we have seen here in this video, in this part, first part of this lesson, in the beginning we have seen some words and their meanings. We have understood these meanings there. Okay, then we have seen there are three levels of the government: central, state, and local. Okay, and there are three organs of government. These are the legislative, executive, and judiciary. Okay, and there are legislation, the procedure of making and passing laws is called legislation. Okay, लेजिस्लेशन किसे बोलेंगे हम, जो प्रोसीजर रहती है लॉ फॉर्म करने की और ये पास करने की, इसे हम बोलेंगे लेजिस्लेशन. ओके, एंड लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल इज आदर यूनिकैमरल और बाइकैमरल. यूनिकैमरल मीन्स सिंगल लेजिस्लेटिव चेंबर रहता है, एंड बाइकैमरल
टू लेजिस्लेटिव चेंबर्स रहते हैं. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव सीन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन 7 स्टेट्स. ये याद रखना है कि हाउ मेनी स्टेट्स these Vidhan Sabha, these legislative councils exist only in 7 states. Okay. Then we have seen about the states. Legislative assembly here and legislative councils. Okay. In legislative assembly, speaker and deputy speakers coordinate the discussion, coordinate the meeting. Okay. And then members of legislative assemblies MLAs, यहाँ पे कौन रहते हैं? members of legislative assembly MLAs. Then in legislative councils, chairman and deputy chairman presided the meetings. Okay. And then there are members of legislative councils. और ये जो legislative councils है यहाँ पे कौन रहेंगे मीटिंग में? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. गॉट इट. देन वी हैव सीन ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 228, लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके. एंड a state divided into smaller areas, and these smaller areas are called the constituency. And for what these state divided into smaller areas? For election. Okay. election के लिए स्टेट डिवाइड किया जाता है और वो डिवाइडेड एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है. ओके.